morning, students of the BSc third year classes in the zoology subject. Topic is once again which are related to the population characteristic features. They are the numbers of or the several characteristic features which are found in a population, so that I was discussed into the last video. There are the three important and the basic characters of the population, and here is the next characters. Fourth character is that to the age distribution. In any kinds of the population which are have to the relatively age groups of the individual, it is the number or the percentage of the individual in the different population. It is number or different age group of individual which are found into the population, so that to the on the behalf of this is formed to the three kinds: growing population, stable population, and the decline populations of the individuals group. So these are formed on the basis of to the they are growing, stable, and to the decline. They are the three forms of to the ecological age groups. Three ecological age group in the population. Three ecological age groups are the ages which are recognized. First is that pre-reproductive, second is reproductive, and third is post-reproductive. There are the three age groups which find pre-reproductive and post-reproductive, which confine to the three age pyramids in the population, may be represented by the rapid or the growing or the expanding population, stable population, and the finally decline population. So there are the pre-reproductive which are concerned or the confined with the growing, rapid growing or expanding population, or the expanding or exponential expanding population. Reproductive is the stable population, and the post-reproductive is the decline population. In a population, there are the three age groups which are found and make to the population, that is the pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive, which are concerned with the expanding and to the exponential growth of the population, that is have to the pre-reproductive phase. And after that, when the any population which is stable in a form, stable in nature, so that to the most of the reproductive phases in this population. And if the any if the population which goes to the in decline in the properties, so that is the post-reproductive age groups which are indicating that. तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, वो तीन प्रकार के पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं, और तीन प्रकार के पॉपुलेशन जो है वो तीन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल एज ग्रुप को दिखाते हैं. एज ग्रुप यहाँ पे आते हैं
और एज ग्रुप के आधार पे हम जो है यहाँ पे इसको एज पिरामिड्स दिखाते हैं। और तीनों एज पिरामिड्स में आप देखेंगे तो देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ द एज ग्रुप्स विच हैव टू द तो अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग जो है यहाँ पे एज पिरामिड्स का फॉर्म हो रहा है, एज पिरामिड्स। और इस एज पिरामिड्स में हम बनाते हैं, आपको देखें कैसे, ये इस प्रकार से एक पहला तो आप ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे, ये देखें एक इस प्रकार का फेज होगा। दूसरा आपका बेल शेप्ड होता है, हम बनाते हैं आपका बेल शेप्ड है, और बेल शेप जो है वो हमेशा इस प्रकार से होता है। और तीसरा अनशेप्ड होता है जो रिस्ट्रिक्टली इस तरीके से होता है। तो 3 प्रकार के आपने जो है यहाँ पे एज पिरामिड्स को रिप्रेजेंट किया, मतलब 3 प्रकार के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 प्रकार के पॉपुलेशन में आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार का, अब देखिए यहाँ पे ये 3 प्रकार के एज ग्रुप, यहाँ पर भी देखें ये इस तरीके से। अब आपको जो है यहाँ पे हमने जो 3 प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज दिखाया है, वो देखिए। अब यहाँ पे ये प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, ये रिप्रोडक्टिव हो गया, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये इंडिकेशन सब में किया जा रहा है। तो देखें अब यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएंगे वो 3 अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट होंगे। तो पहला देखा है हमने एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार का जो ट्रायंगुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर शेप में है, यहाँ पे किस प्रकार का होगा, ट्रायंगुलर शेप में प्राप्त होने वाला जो ये क्या कहते हैं आपका पॉपुलेशन है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहलाता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहलाएगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहलाएगा। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कैसे होगा कि इस प्रकार के पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोइंग, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज ग्रुप है वो जो है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, ये देखिए इस प्रकार से हम आप यहाँ पे बना रहे हैं। वी आर मेक टू द दिस काइंड्स। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो बहुत ही शार्टेड एरियाज में है, मतलब अगर हम बेस से वहाँ पे अपेक्स पे जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो ज़्यादा स्टेबल है। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप्स है वहाँ पे तो इस प्रकार के पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट होता है, मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ होता है उसका, वो बहुत तेज़ी से होता है। और इसके आधार पे इसको एक्सपेंड करना, फैलना, पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ता जाएगा और वो बढ़ेगा विच आर ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल एंड द ग्रोइंग बर्थ रेट ऑफ द सो दैट टू द दिस इज द इंडिकेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। सो दिस इज कॉल्ड टू द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड आफ्टर that to the form to the bell shaped structure in the stable population। अब stable population के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कुछ ज़्यादा ही मोर और लेस, या ये कहें कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो होता है वो यहाँ पर मोर और लेस समान है, एक इक्वल है। और जबकि ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे ये बेल शेप्ड हो गया है, बेल शेप्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है। तो
यहाँ पे इस प्रकार के पॉपुलेशन को शो करने वाला जो स्ट्रक्चर है, इस पॉपुलेशन में जो रिप्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी स्थायित्व को प्राप्त करता है, और इसका मतलब यहाँ पे है यंग एज के जो इंडिविजुअल्स हैं ओल्ड स्टेजेस की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे और ज़्यादा स्थिर तरीके से ये पॉपुलेशन चलेगा, ग्रो करेगा और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेगा। जबकि ये देखें बेल स्ट्रिक, यहाँ पे इस प्रकार का पॉपुलेशन है, तो ये हो गया बेल शेप्ड पॉपुलेशन, और ये इसको बोलते हैं अर्न शेप्ड, ये अर्न शेप्ड पॉपुलेशन है। अब इस प्रकार के पॉपुलेशन में कहा डेक्स्ट्रक्टली कट है, मतलब इसको ये जो आपका प्री रिप्रोडक्टिव है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है, ये बहुत ही इसकी कंपैरिजन में बहुत ही कम है। मतलब उस प्रकार का पॉपुलेशन जहाँ पे ओल्ड स्टेजेस ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ओल्ड स्टेज के जो इंडिविजुअल या मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के पॉपुलेशन को अनशेप्ड पॉपुलेशन बोला जाता है, और वो हमेशा डिक्लाइन करते हैं, मतलब डिमिनिशिंग की तरफ जाते हैं। देखिए अगर हम एक पॉइंट बनाएं, यहाँ से एक समझने का प्रयास करें, तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होगा, और इस बिंदु पे जाके यहाँ पे ये एसिम्प्टोट बोला जाता है, एसिम्प्टोट बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे, और इसके बाद यहाँ से ये डिक्लाइन करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन एंड देन डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो तीन प्रकार के पॉपुलेशन को हमने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया, जो कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंतर्गत वन ऑफ द कैरेक्टर के रूप में है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एक अन्य जो है कैरेक्टर की, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फॉर्म। तो ग्रोथ फॉर्म जो होता है वो डिपेंड करता है, तो देख लेते हैं ग्रोथ फॉर्म। तो ग्रोथ फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं जो पांचवा है ग्रोथ फॉर्म। तो ग्रोथ फॉर्म मतलब उस प्रकार का पॉपुलेशन जहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इज एंटिटी विच आर एवर चेंजिंग, वो हमेशा जो है चेंज होता रहता है। पॉपुलेशन एक ऐसा जो है एंटिटीज़ है जो वो चेंज होता रहता है, और उसका जो है साइज और केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन वो हमेशा बदलता रहता है। तो उसके आधार पे जो है इट्स साइज एंड कंपोजिशन एवर चेंजिंग, द चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन आर डिपेंड अपॉन द बर्थ रेट, डेथ एंड द मोमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ फॉर्म्स जो है वो जो एवर चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग एंटिटी है। पहली बात तो क्या है, चेंजिंग एंटिटी है, चेंजिंग एंटिटीज़ है, अस्तित्व वाला है, और वो जो उसकी साइज और जो उसका शेप है वो डिपेंड करता है उसकी नेटेलिटी पे, या एक लिख लीजिए बर्थ रेट पे, डेथ रेट पर, और ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट के आधार पर। तो तीन चीज़ें विशेषकर हैं जो कि इसके ग्रोथ फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इंडिविजुअल की मृत्यु हो रही है, या इंडिविजुअल जन्म ले रहा है, या उस पॉपुलेशन को इंडिविजुअल है उसको छोड़ कर जा रहा है, तो जो इसमें इमिग्रेशन या माइग्रेशन भी बोल सकते हैं आप। तो ये तीन प्रक्रियाएं होंगी। तो डेथ रेट, पहले बर्थ रेट है, न्यू इंडिविजुअल ऐड हो रहा है, तो भी वहाँ पे वो फ्लक्चुएट करेगा, मतलब इसका ग्रोथ फॉर्म अलग हो जाएगा। अगर उसमें उसकी मृत्यु हो रही है तो भी उसमें फ्लक्चुएशन होगा, या वो लीव आउट कर रहा है, वहाँ से छोड़ रहा है पॉपुलेशन को, तो भी वहाँ पे उस पे अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो होता है वो दो प्रकार से ग्रोथ फेज को रिप्रेजेंट करता है, एक जे शेप्ड और दूसरा जो है वो यस शेप्ड। ग्रोथ फेज दो प्रकार के हैं। एक पहला हमने जो बोला कि जे शेप्ड ग्रोथ फेज और यस शेप्ड ग्रोथ फेज। ग्रोथ फॉर्म दो प्रकार के, जे शेप्ड और दूसरा जे शेप्ड और दूसरा यस शेप्ड। ये आपको
हम लोग आप समझे ग्राफ के माध्यम से। पहले जे शेप्ड समझते हैं। जे शेप्ड ग्रोथ फॉर्म्स क्या है? ये ग्रोथ पैटर्न है जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ पे तो अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। एक फॉर्म्स है, यहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। दो एक्सिस हैं, वी आर टेक्स टू द टू एक्सिस एक्स एंड वाई. We takes to the example for that to the population growth form which are initial point. This is the initial point and where are the J-shaped. ये J-shaped के लिए है. J-shaped growth form कैसे होता है? ये इन्वायरमेंटल कंडीशन और कंपोजिशन पे निर्भर करता है, जो फिजियोलॉजिकल या फिर फैक्टर्स होती हैं उस पर डिपेंड करता है और उसके माध्यम से वहाँ पे ग्रोथ फॉर्म्स रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले किसी भी पॉपुलेशन में जब रैपिड ग्रोथ होता है, ये देखें इस प्रकार से, यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ से गया, पॉपुलेशन यहाँ पे गया, इस प्रकार से देखिए। पहले तो यहाँ से इस बिंदु से ये इसने स्लोप यहाँ पे गया और बहुत रैपिड कंडीशन में यहाँ पे इसने फ्लो किया, मतलब ग्रोथ पे किया। यहाँ से इस बिंदु से ये स्लो एंड देन वी आर गोइंग इनटू द रैपिड कंडीशन। तो रैपिड कंडीशन के बाद जब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस या फिर कोई फैक्टर, फूड है या फिर जो है स्पेस है या फिर जो है सीजन है, तो लिमिटिंग फैक्टर जब यहाँ पे अफेक्ट करता है तो इस पॉइंट से ये क्या करता है, डिक्लाइन की तरफ जाता है। देखिए इस तरीके से, तो इस प्रकार का आप देखें ये जे शेप्ड फॉर्म ये देखिए बना रहा है, तो जे शेप्ड फॉर्म ग्रोथ ऐसा बनता है। तो इस प्रकार, तो इसमें क्या हुआ, पहले first of all slow and then go to the rapid condition and after that is going into the diminishing the decline to the population, so that to the which form to the J-shaped structure on the behalf of this structure, that is called to the growth form is J-shaped. तो ये J-shaped form होता है। आगे चलें, अगले, तो अगले में हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है वो यस शेप्ड फॉर्म बना रहा है, जिसको सिग्मॉइड ग्रोथ फॉर्म बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे यस शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, देखिए दूसरा हम ग्राफ बनाते हैं ये इस तरीके से, दूसरे प्रकार के ग्राफ में। अब मैंने कहा कि यस शेप्ड, ये क्या है, एस शेप्ड, और इसमें तीन फेज होंगे। तो एक पहला इनिशियल जो फेज होगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज होगा, पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज, एक्सीलरेशन फेज। दूसरा है लॉगरिथमिक फेज, लॉग वैल्यू पे। और थर्ड है आपका निगेटिव एक्सीलरेशन फेज, निगेटिव एक्सीलरेशन फेज। तो ये देखें तीन प्रकार के यहाँ पे फेज आएंगे जो यस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। देखें यहाँ पे कैसे, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और इस प्रकार के, अब इस इनिशियल पॉइंट से जब यहाँ पे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्रोथ करेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये स्लो जाएगा। ये देखिए बहुत ही स्लो जा रहा है, स्लो। लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये लैग जो स्केल होता है उस पे, मतलब वेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाएगा। तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा रहा है, देखिए ये। और इस यहाँ पे इस लिमिटिंग बाउंड्री पे, जिसको यहाँ पे, इसको यहाँ की भाषा में एजिम्पटोड बोलते हैं, दिस इज द एजिम्पटोड एंड दैट्स टू द लिमिटिंग लाइन थ्रू द, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से ये, यहाँ से इस प्रकार का थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हैं हम। तो यहाँ से इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार का यहाँ से ये, तो इस बिंदु से
ये एजिम्प्टोड बोला जाता है जो लिमिटिंग बाउंड्री है, और यहाँ से देखिए ये इस प्रकार का ग्रोथ बनाता है। तो इसमें 3 पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज है, मतलब जबकि जो पॉपुलेशन होगा, वहाँ के जो इंडिविजुअल ग्रुप पॉपुलेशन होगा वो स्लोली विच आर गोइंग इन द ग्रोथ, तो वहाँ पे ग्रोथ स्लो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद जो कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, एक्सपेंड करेगा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, लेकिन एक लिमिटेशन पे जाने पे, एजिम्प्टोड पे वो फिर से डिक्लाइन की अवस्था में पहुँच जाएगा। तो जब एक्सपोनेंशियल किया तो उसको लॉगरिथमिक स्केल पे काउंट करते हैं, तो लॉगरिथमिक फेज बोलते हैं। और उसके बाद जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ये देखिए उसके सापेक्ष चलने जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखिए, तो इस प्रकार के फेज को यस शेप्ड ग्रोथ फेज बोलते हैं, जो कि आपने समझा। तो ये दूसरे प्रकार का जो है ग्रोथ फॉर्म्स था। अब आगे अगले कैरेक्टर की तरफ चलेंगे तो हम वो बात करेंगे अगले कैरेक्टर की, और इस कैरेक्टर के अंतर्गत हम जो है वहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो है पॉपुलेशन डिस्पर्सल की, पॉपुलेशन में डिस्पर्सल की भी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम पॉपुलेशन डिस्पर्सल की तरफ भी चलेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे अन्य जो है कैरेक्टर की, और उसके अंतर्गत हम पॉपुलेशन डिस्पर्सल, नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्पर्सल की बात करते हैं। डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं, डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पे वो चीज़ें फैल रही हैं। डिस्पर्सल मतलब डिस्पर्स करना, डिस्पर्सन होता है। तो डिस्पर्सल एक मॉड है डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिविजुअल में। मतलब क्या? डिस्पर्सल इज द मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्पर्सल इज मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन in a population क्या है? डिस्पर्सल इज अ मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंतर्गत जो इंडिविजुअल्स का डिस्पर्सल इज मॉड ऑफ डिस्पर्सन, मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। तो डिस्पर्सन क्या है? एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो किसी भी एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये इट ग्रेटली अफेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चरल लैंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पॉपुलेशन। और ये 3 फॉर्म होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। 3 पैटर्न होते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न, रैंडम पैटर्न एंड क्लम्प्ड पैटर्न। इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला यूनिफॉर्म पैटर्न, रैंडम पैटर्न, और तीसरा है क्लम्प्ड। तो 3 प्रकार के यूनिफॉर्म, रैंडम और क्लम्प पैटर्न पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसको हम विद द डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से होगा। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो है वो वहाँ पे जो पॉपुलेशन इंडिविजुअल जो है वहाँ, यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का, यूनिफॉर्म पैटर्न पे देखें, ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो देखें ये जियोग्राफिक एरियाज है जहाँ पर
जहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मोर और लेस इवनली, मतलब हर जगह पे एक समान रूप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पॉपुलेशन के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया, मतलब अगर एक विशेष पॉपुलेशन है, जनसंख्या है और वो विशेष परिक्षेत्र में रह रही है, तो उसी के अंतर्गत वो कोई इंडिविजुअल यहाँ से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथे जगह उसी परिक्षेत्र में करता हो तो वो डिस्पर्सल प्रोसेस कहलाता है। और वो 3 प्रकार से होता है, तो यूनिफॉर्म, रैंडम, क्लम्प्ड। हम रैंडम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इवनली द डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन इज मोर और लेस सेम, हर जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से हो रहा है, तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। देखिए समान रूप से पूरे, ये क्या है, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, समान रूप से पूरे इंडिविजुअल का पूरे एरिया में वहाँ पे टाइम में इस पैटर्न पे, तो यूनिफॉर्म पैटर्न पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा हम देखते हैं रैंडम में, तो रैंडम में जो इंडिविजुअल होते हैं वो ना एग्रीगेट करते हैं, और कहने का मतलब है कि ये जो यूनिफॉर्म और क्लम्प जो आएगा उसके बीच की ये पैटर्न है। देखिए इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ये देखिए ग्राफ, दूसरा ग्राफ। अब इसमें ना ही इसको एग्रीगेट दिखाएंगे और ना ही क्लम्प्ड फॉर्म में दिखाएंगे, मतलब ये समान रूप से वितरित भी नहीं होगा और एक जगह पे 1 से 2 या 2 से अधिक जो इंडिविजुअल होंगे उस परिक्षेत्र में होंगे भी नहीं। तो क्लम्प जो होता है वो, और रैंडम जो होता है वो रेयरली सीन होता है, और ये तभी दिखाई पड़ता है जब बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, इस प्रकार से, कहीं 2-4 यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे, या कहीं यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ऐसे, मतलब इवनली नहीं है और ना ही क्लम्प्ड है, थोड़ी थोड़ी दूर पे। जैसे हम अगर एग्जांपल ले, रैंडम कैसे कहते हैं, अगर जनसंख्या प्रतिदर्श की बात करते हैं, सैंपल की बात करते हैं, तो अगर हम 100 में से 100 उस पॉपुलेशन की हमें क्या कहते हैं डिस्पर्सल को जानना है, ग्रोथ को जानना है, तो वहाँ पे अगर 100 इंडिविजुअल है, अगर उस 100 इंडिविजुअल से हमने एक मानक मिल लिया कि हम 10 इंडिविजुअल को अगर के बारे में, व्हाट अबाउट टू द 10 इंडिविजुअल्स सो दैट टू द ऑन द बिहाफ विच आर एक्सप्लेन इट, तो हम उसके आधार पे पूरे 100 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो वही है। तो यहाँ पे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्लम्प्ड की क्या बात करते हैं, क्लम्प्ड देखिए तीसरा क्या है, क्लम्प्ड। तो क्लम्प्ड के अंतर्गत जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट द पूरे पॉपुलेशन में जो ग्रुपिंग होगी वो विशेष स्थान पे होगी, ऐसे एक एक जगह पे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी ग्रुपिंग हो जाती है एरियाज में। तो इस प्रकार का जो है, याद ये ना तो यूनिफॉर्म होता है ना रैंडम होता है, इसका अलग है। तो 3 फॉर्म है, आपने देखा, ये रैंडम हो गया और ये क्या हो गया, ये क्लम्प्ड हो गया। तो आपने 3 फॉर्म देख लिया और 3 फॉर्म के हिसाब से आपने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो ये इस प्रकार से आपने देखा। अब हम चलते हैं जो कि बायोटिक पोटेंशियल, अगला जो है बायोटिक पोटेंशियल के बारे में हम बताते हैं आपको। 7th नंबर है बायोटिक पोटेंशियल, ये अगला कैरेक्टर है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन होता है उसमें एबिलिटी होती है जो वो नंबर को इंक्रीज कर सके। तो ये क्या है, बायोटिक पोटेंशियल आर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन विच आर हैव टू द कैपेसिटी आर द पोटेंशियल फॉर दैट टू द प्रोडक्शन ऑफ टू द न्यू इंडिविजुअल, सो दैट इज कॉल्ड टू द बायोटिक पोटेंशियल। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल के माध्यम से जो प्रदर्शित होने वाला ये कैरेक्टर्स है वो न्यू यंग वंस के पैदा करने की क्षमता या फिर प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, जो कि सभी इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन के अंतर्गत पाए जाते हैं उसमें होती है। तो ये विशेष
फीचर भी उसके अंतर्गत पाया जाता है जो कि वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो इस आधार पे हमने एक और कैरेक्टर आपको बताया। उसके बाद आगे चलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल की। एक अगली प्रक्रिया है पॉपुलेशन डिस्पर्सल की, उसको देख लेते हैं। एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है। तो पॉपुलेशन डिस्पर्सल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है। अब हम अगले कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, पॉपुलेशन कैरेक्टर के पीछे की तरफ, जिसमें ये अगला कैरेक्टर है पॉपुलेशन डिस्पर्सल। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। अभी आपने डिस्पर्सन पढ़ा था, तो उसमें जो है विद इन द पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। यहाँ पे ये जो डिस्पर्सन होता है ये टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, और ये टाइप ऑफ मूवमेंट जो होगा वो अलग अलग तरीके से होता है। तो द एबिलिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, सो दैट इज कॉल्ड टू द डिस्पर्सल प्रोसेस। तो डिस्पर्सल प्रोसेस के माध्यम से जो इंडिविजुअल्स होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है। इसमें 3 कैटेगरी होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी है आइमीग्रेशन की, दूसरा इमिग्रेशन की, ये है दूसरा है आइमीग्रेशन की, तीसरा है माइग्रेशन की। देखिए 3 प्रोसेसेस है। दैट इज द मूवमेंट, ये मूवमेंट की प्रक्रिया है। मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, या द वन स्पीसीज या द वन जियोग्राफिक एरिया टू अनदर। इन द प्रोसेसेस ऑफ द मूवमेंट इज द इमिग्रेशन एंड आइमिग्रेशन इज द वन वे प्रोसेसेस। वन वे प्रोसेस है ये मूवमेंट का, जबकि वाइल द माइग्रेशन इज द टू वे प्रोसेसेस। देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं। डिस्पर्सल मूवमेंट क्या, जब किसी भी एक जियोग्राफिक एरिया से कोई भी जो इंडिविजुअल्स होता है वो दूसरे पॉपुलेशन में रिप्रेजेंट अपने आप को करने लगता है, या फिर यहाँ से छोड़ के दूसरे पॉपुलेशन में चला जाता है, तो इस पॉपुलेशन से जो छोड़ने वाला है वो यहाँ के लिए क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। इमिग्रेंट कहलाता है। और जो जिस प्रोसेस से हो रहा है ये इमिग्रेंट प्रोसेस है। तो मतलब अवे फ्रॉम द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये आउटवर्ड है। ये जो विशेष पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से छोड़ के दूसरे तरफ जाना, ये आइमिग्रेशन प्रक्रिया है। और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आइमिग्रेंट कहलाते हैं। आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट। अब देखिए, अब ये जो इंडिविजुअल है जिस पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है, यहाँ के लिए ये क्या हो जाएगा? आइमिग्रेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ ये इनवर्ड प्रोसेसेस है। मतलब आइमिग्रेशन इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के इनवर्ड मूवमेंट, मतलब देखिए यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये क्या दिखा रहा है? आइमिग्रेंट है ये, आइमिग्रेंट है ये। और जिस प्रोसेस से हो रहा है वो आइमिग्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनवर्ड प्रोसेस, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अब ये क्या है? अब देखिए, इसमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो फिर से वापस अपने उस क्षेत्र में जाएगा जहाँ से वो छोड़ के आया है, इसलिए इसको वन वे प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, देयर आर नो पॉसिबिलिटीज विच आर अकर द इंडिविजुअल आफ्टर if the left out their original position and that is going to the another position, that is called to the one way process। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल जब कि उसमें ये उद्देश्य या फिर ये नहीं रहता कि वो अपने वापस उस क्षेत्र में जाएगा जहाँ से उसको छोड़ के जा रहा है, तो इसलिए उसको वन वे प्रोसेस होते हैं। वो इमिग्रेशन और आइमिग्रेशन प्रोसेस दोनों के अंतर्गत होता है। जबकि माइग्रेशन जो होता है वो
यहाँ पे हमने लिखा है टू वे प्रोसेस। माइग्रेशन इज द प्रोसेस, इज द outflow and movement are the periodic or the seasonal changes, seasonal movement of the organism for the special purposes and return back to the their dwelling place। तो कहने का मतलब है ये माइग्रेशन इज a special type of the migration in which the individuals which are going into the another place for that to the special purposes and return back to the their dwelling place। अपने dwelling place से फिर से रिटर्न होने की जो उसमें प्रवृत्ति होती है, जो उद्देश्य होता है, वो माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। और इसीलिए हमने कहा है कि ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। और टू वे प्रोसेस तो यहाँ मान लीजिए जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में माइग्रेशन होता है, फिगेस में माइग्रेशन होता है, मैंस में माइग्रेशन होता है। तो बर्ड्स जो है, देखिए बर्ड्स जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप को सर्वाइव और जो है फूड्स को प्राप्त करने के लिए करती हैं। फिशेस जो होती है स्पॉनिंग और फूड प्राप्त करने के लिए होती है। और मैंस भी इसी प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से स्थान पे जाएंगे लेकिन अपने ड्वेलिंग प्लेस को फिर से वापस होंगे, या उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या प्रोडक्ट होते हैं वो वापस आते हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को देखिए टू वे प्रोसेस हो गया, तो ये माइग्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये टाइप ऑफ क्या है, डिस्पर्सल है, पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। तो हमने कुछ विभिन्न प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं पॉपुलेशन के, वो हमने आपको रिप्रेजेंट किया और ये समझाने का प्रयास किया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत पॉपुलेशन और उसके विशेष जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या हुए। अगले चैप्टर में हम कुछ इससे रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे। धन्यवाद।